slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Care service is free of cost. The problem arising here is the number of resources which are needed to take care for all this community. For that purpose, for last 3 years in primary healthcare services, universal health insurance, which is also a component of universal health coverage, has been initiated. This is one such model which, followed properly with all its prerequisites and the ironing up of the problems in it, can give the answer to our big question of universal health coverage. I'll just shorten up here and add just 3 things in it, how it could be the answer to the question of universal health coverage. I think the 3 basic issues for the healthcare coverage would be proper trained HR, not only skillful but in adequate numbers, starting from doctors, consultants, leading up to paramedical staff and the auxiliary staff as well. Thank you very much, sir, for elaborating the efforts by our government department. Now I would like to call upon stage Dr. K. Kain Zo, who is a medical referent from DRTB. Kindly join us on the stage and say a few words. Thank you all the respected professors, consultants, and ladies and gentlemen, and the students also. My name is K. Kain Zo, and I'm working at PMTT Clinic in Gujranwala Teaching Hospital. We are the organization, international organization, Medicine Sans Frontiers, which is also known as Doctors Without Borders. So in this day of universal health coverage, I would like to share some of the components that is related to TB care also. So what is related to universal health coverage with our TB care? I'm sure everyone is aware of that TB is a communicable disease and it's mostly affecting people of poor socio-economic status due to malnutrition, overcrowded living conditions, and unable to access healthcare, free healthcare. Thank you so much for your insightful talk. Few of our esteemed guests are still on their way and we are waiting for them. They'll be arriving very soon. As healthcare professionals, we have to understand this concept of universal health coverage very well in order to implement it. Next, I would like to call upon stage Dr. Sarfraz Mughal, who is the CEO of Al Shifa Hospital. Please join us on the stage, sir, and say a few words about this topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर वाल लोगर साहब, डॉक्टर शाह साहब, डॉक्टर नैयर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस डिफरेंट टॉपिक्स पे इतनी कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन और सेमिनार्स करवाते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से हम हासिल करते जाते हैं। तो सर, इस सेमिनार के वाले से मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे काइंडली ये एलेबोरेट करें कि हमारे गुजरांवाला में प्राइमरी सेंटर कौन से हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर कौन से हैं और टर्शरी कौन से हैं। इवन कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को भी नहीं पता कि प्राइमरी लेवल पे क्या काम हो रहा है, सेकेंडरी पे क्या है और टर्शरी पे क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपने क्वेश्चन किया कि एक बंदे को डायरिया होता है तो सीधा GMC आ जाता है, तो उसकी ओरिएंटेशन कैसे होगी। इसके लिए सर अल शिफा हॉस्पिटल जो है GMC के साथ मिलके एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिसमें हम अपने मेडिकल डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और जनरल जो वहाँ में उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू करेंगे कि जिसमें ओरिएंटेशन होगी कि बीइंग पर्सन हमारी राइट्स क्या हैं और हमें अगर प्रॉब्लम होता है तो हमने कहाँ जाना है और किसके साथ हमने कांटेक्ट करना है। नंबर 2 सर, यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में सबसे इम्पोर्टेंट आप समझते हैं कि पेशेंट हैं, लेकिन जो ये सारा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, उनके ऊपर क्यों नहीं काम किया जाता। अभी जो इंश्योरेंस का प्रोग्राम चला उसमें सबसे ज़्यादा फेलियर क्या हुआ कि एक हमारे मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे हॉस्पिटल के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, हम कैटरेक्ट सर्जरी के आपको 6000 आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे, बाकी सारे खर्चे एक्सपेंस करके।
जब वो प्रोग्राम शुरू हो गया तो हमें वो पर सर्जरी जिसका हम प्राइवेट 20 से 25,000 चार्ज करते हैं, हमें 1500 से 1,000 रुपया दिया जाता है, और वो भी 2-3 महीनों के बाद। तो आप ये सोचें कि अगर मैं एक केसेस के ऊपर सर्जरी मेरी 1 माह की होती है तकरीबन 100 से 150, 25 से 30 लाख रुपया सर मेरा उनकी कंपनी की तरफ चला जाता है। और जब उनको कांटेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपको दे देंगे, अगर आपने काम करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करें। वो पैसे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो जो यूनिवर्सल आपका हेल्थ प्रोग्राम है उसमें सारी आपकी जो सर्विसेज हैं वो पेशेंट्स के लिए हैं, लेकिन हेल्थ प्रोवाइडर के लिए नहीं है जो ये सारे काम कर रहे हैं। फिर क्या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस हैं उनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड के लिए, हमारे गनमैन्स के लिए जो हमारे बाहर रोड पे खड़े होते हैं, सारा धूप में उनकी चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमारे साथ क्या किया जाता है? इसमें सर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक पेशेंट आता है, वो हेल्थ कार्ड देता है, वो ये समझता है कि डॉक्टर साहब को गवर्नमेंट ने को 8-10 लाख रुपया हमारी ट्रीटमेंट का दिया हुआ है। एक तो सर वो बदतमीजी करता है, नंबर 2 वो एक्नॉलेज नहीं करता कि अगर सर मेरे पास 100 पेशेंट बैठा हुआ है तो मैंने उनको ट्रीट करने के बाद ही नेक्स्ट ट्रीटमेंट करनी है ना। तो ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है, ये इट्स वेरी अलार्मिंग साइन कि अगर बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं तो हमें भी उस लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए। अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट्स होता है तो इमीडिएटली हमारी रेस्क्यू के लिए कोई टीम होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। और दूसरा सर जो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें एज ए होल जो हमारी टीम इन्वॉल्व है उनके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होने चाहिए। अगर एक डॉक्टर ड्यूटी पे है और दूसरा डॉक्टर नहीं आया तो वो 24 से 36 घंटे काम करता है। हमारे हॉस्पिटल में बीइंग एमएस, बीइंग प्रिंसिपल या हमारे सीनियर उसको एक्नॉलेज करते हैं या उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं इन द शेप ऑफ फिनंशियल और इन द शेप ऑफ एप्रिसिएशन, वो नहीं है। तो हमारे डॉक्टर क्यों एटलीस्ट 16-16 घंटे या 32-32 घंटे काम करें? तो ये मेरे कंसर्न थे। बाकी हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम बिल्कुल होना चाहिए, पूरी दुनिया में चल रहा है और हमें भी इसको लेके चलना चाहिए, लेकिन जो ये पॉइंट्स है इसके ऊपर भी कंसंट्रेशन रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. You have highlighted the problems very well. Thank you very much, Dr. Sadia. There is a good news that we are going to sign MOU between Gujranwala Medical College and Punjab Road Safety Authority very soon, for which we are really thankful to our respected principal, Gujranwala Medical College. And the main purpose of this MOU is to improve road safety and awareness and reduce incidents of road traffic accidents. Or there will be, how we will do it, there will be joint awareness campaigns between Punjab Road Safety Authority and the team of Gujranwala Medical College to reduce incidents of road traffic accidents. We will arrange seminars, we will do joint campaigns, and or even publicly we will do awareness seminar that what's the importance of seat belt and what is the importance of helmet. So it will be very effective. We will do the training programs for the paramedical staff, for the doctors, that how will take care of how they will take care of emergency patients who will come to emergency with road traffic accidents. And then the most important thing is that we will share the data between Punjab Road Safety Authority, that how many cases are managed in Gujranwala Medical College and how much what will be the benefit of this MOU, that after signing this MOU how many patients and how they got benefit, and the number of incidents and number of accidents are reduced. And then the most important thing is that जो कि मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा वो करनी चाहिए कि there is definitely जो when there will be violation there should be penalty. तो being doctor और जो है
जो है इवन एजुकेटेड लोग समटाइम आपको ऐसे ही होता है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप जो है या तो अपना कोई ना कोई कार्ड दिखाते हैं, कोई ना रेफरेंस करते हैं या जेब से मोबाइल निकालते हैं एंड देन यू गिव कि ये ले जी से बात कर लें। तो डेफिनेटली अभी सुबह भी हम बात कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट में कि जब तक हमारे रूल्स और लॉज की पे जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक हो सकता। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बहरहाल एनीवेज हम पंजाब जो है इसका जो हमारी रोड ट्रैफिक जो है सेफ्टी अथॉरिटी जो है उनका वी आर थैंकफुल टू यू के उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और मोस्ट प्रॉब्ली एज सुन एज पॉसिबल यू विल गेट द गुड न्यूज़ कि हम इस पर इम्प्लीमेंटेशन करें और फिर डाटा शेयर करें। बेसिकली मेन पर्पस यही है कि जितनी मैक्सिमम सेफ्टी हो सकती है वो हम करें। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you so much, sir. Dr. Asif Shah, kindly, will you please share something about this topic with us? Now, it's my privilege to invite Dr. Irshadullah, the respected medical superintendent of DHQ Hospital, Gujranwala, to the stage. Dr. Irshadullah has been a driving force in enhancing healthcare delivery and ensuring the efficient management of the vital institution. Dr. Irshadullah. थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं सर का बेहद मशकूर हूँ कि सर ने इस तरह का एक ज़बरदस्त किस्म का सेमिनार कंडक्ट करवाने में हमको भी शामिल किया और हम उनके दस्तोबाजू होते हैं हर वक्त। और मैं अपनी ऑडियंस का भी बेहद मशकूर हूँ। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस जब ये स्टार्ट हुआ तो इसके बारे में बहुत सारी रिजर्वेशन थी जो लोगों के जहनों में थी, उनको बहुत सारी को विद द पैसेज ऑफ टाइम रेक्टिफाई भी कर दिया। जिस तरह सरफराज साहब ने फरमाया कि सिक्योरिटी और ये बाकी मैटर्स हैं इनको कैसे टेकअप किया जाता है, इसके पेमेंट के क्या मैकेनिज़्म है। तो इसमें डे बाय डे जो हमारा सेंट्रल है कनेक्शन उसको हम बिल्डअप भी करते रहते हैं और जो आप लोगों के फीडबैक होते हैं उसको भी हम शेयर करते हैं। लेकिन नो डाउट ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर इसको हम सक्सेसफुली रन करें तो हमारे बहुत सारे, जिस तरह प्रिंसिपल साहब फरमा रहे थे कि हमारे बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से समटाइम हमें उसकी उस तरह से फंडिंग नहीं हो पा रही होती। तो इसमें कुछ पोर्शन हमारा चंक हमें मिलता है MNR के पार्ट में, कुछ हमारा शेयर के पोर्शन में होता है। लेकिन इसमें जो मेन रोल है, मैं आई एक्नॉलेज कि हमारी पेमेंट्स के जो मामला हैं, चाहे वो शेयर ज़्यादा है कम है, वो लेटर ऑन डिस्कस हो जाता है कि उसकी 60-40 है 50-50 है, जो भी है वो टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन उसके पेमेंट्स को टाइमली डिस्पर्स करना ये भी हमारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। तो मैंने जब से ये मामला टेकअप किया है एज MS, मेरे दोनों हॉस्पिटल थे, अब मेरे पास GTH का चार्ज है, तो हम लोगों को ये इनकरेज भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारा आप सबका कि हम सबको अवेयर करें कि जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो सबसे पहले उस काउंटर को जो हमने अवेलेबल करवाए हुए हैं नुमाया जगहों पे, वहाँ पे अपना ID कार्ड जरूर लेके आए। विदाउट ID कार्ड अब उसको इवन OPD की सिलेक्टेड मेडिसिन भी नहीं मिलती। और पेशेंट अक्सर आके हमारे से थोड़ा सा करते हैं कि हमें पर्ची नहीं बनाने दी जा रही, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हमने मल्टीपल जगहों पे अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई, मीडिया को, सोशल मीडिया को भी यूज़ किया इस काम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा इसमें जो बहुत बड़ा रोल है हमारा फैमिली ट्री का कंप्लीट ना होना। बहुत सारा हमारा चंक निकल जाता है जो हमारा गायनी का और पीड्स का है, ज़रा बहुत बड़ा लोड है ये हमारे हॉस्पिटल के ऊपर। तो गायनी में भी वही मसला है कि अगर फीमेल की शादी हो जाती है तो वो शादी के बाद उसका ID कार्ड चेंज नहीं होता उसके हस्बैंड के नाम पे। इसी तरह जो बच्चा पैदा होता है उसका भी यही मसला होता है कि उसका चूँकि ID कार्ड नहीं होता, तो वो फिर हम हेल्थ UHA के साथ हम टेकअप करते हैं मुख्तलिफ मामला, और उन्होंने काफ़ी सारी इसमें हमारी सजेशन के बाद इसको रेक्टिफाई भी किया। और अल्टीमेटली जब तक हम इस सारे के सारे प्रोसेस को एक पर्सन हमारे लिए कीमती है इस काम के लिए, हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली, हम ये नहीं कहते 100% इससे बेनिफिट मिलता होगा, लेकिन जिसके बदले में कुछ हमें मिल रहा है हॉस्पिटल को, वो बेनिफिट हमें डेफिनेटली अपने लोगों से, अपनी गवर्नमेंट ने अगर इसको स्पॉन्सर किया हुआ है तो हमें उसका फ़ायदा लेना चाहिए। We are so honored to have Dr. Ahmed Javed Qazi, Secretary of the Transport and Mass Transit Department. Dr. Qazi has played a pivotal role in enhancing public infrastructure and transportation, which directly impacts healthcare accessibility. I would like to call upon stage Dr. Ahmed Javed Qazi to please have a few words about today's topic. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Very honorable Professor Iqbal Logar Sahab, Principal, Gujranwala Medical College.
Mr. Manzar Javed, Director General of Punjab Road Safety Authority, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It is indeed an immense pleasure for me to be here in the GMC again, but this is for the first time that I have visited this very auditorium. I had been visiting this place earlier quite repeatedly when this medical college hospital was under construction, and it is indeed a pleasure once again to see now that it is fully functional and all the floors have already been occupied, and multiple disciplines of medicine and surgery they are now operational, serving the people and ailing humanity. I'm sure this dedicated work by the team of Gujranwala Medical College, its faculty, nursing staff, doctors, paramedics and all, this would continue, and you will definitely not only make a mark when it comes to the field of medical profession and service, but also you will create a house for yourself within the hearts and minds of the people of Gujranwala. This was a dire need that we should expand the medical infrastructure for this mega city in the health arena or sector, and Mr. Professor Maruf Aziz Khan, whose name is there when I just entered this auditorium, he was the principal when most of the construction work was carried out, and I must also acknowledge his services who made this all happen, and this construction came to a final conclusion and moved towards operationalization under the leadership of the current Principal Sahab, Professor Iqbal Dogar. Why are we here today? This is what I have to talk about. A few weeks earlier, I received a call from Professor Iqbal Sahab that he would like to call on me and in order to discuss how the medical profession or his medical college, they can come in coordination or in partnership with the interventions being carried out by the Transport and Mass Transit Department of the Punjab government. We do understand that transport is the basic need. You people leave your houses and you require transport. After doing the daily work, you have to go back to your houses and you need transport. And under this banner of transport, a lot many interventions are taking place. We must have a safe, affordable, modern, dependable transport infrastructure. This does not include vehicles alone. It actually talks about an ecosystem whereby the road infrastructure is important, the signage is equally important, the attitude and behavior of the passers-by and other road users. The person who is actually driving a vehicle obviously is at the helm at that very moment, and then many other things that you can think of when it comes to the hazards of using the roads. And I must share with you that Punjab is the first province in this country which came up with the idea of having an independent Punjab Road Safety Authority. So, I mean, you can find such instances in a few states of India and maybe in certain developed countries, but none other province has actually established an authority which may look at the issues of road safety in a holistic manner. And when I shared this idea with Iqbal Sahab, he said that this seems to be an area where we can cooperate with each other. And every now and then we find road traffic accidents, the patients or the wounded, the trauma which you experience because of unsafe road use practices. Under his visionary leadership, this institution has made remarkable strides in medical education and community health initiatives. Sir, the stage is all yours. Bismillahirrahmanirrahim.
I am really by heart thankful to Honorable Secretary Transport and Mass Transit Department, Professor Ahmad Javed Qazi, who is, you also know that he is Camcolian. So by heart he is also very close to our heart, and during his secretaryship in the health department, he really helped us a lot in establishing, then in the running of this hospital and the Children's Hospital Lahore, Gujranwala, which is now one of the best facility where our pediatricians are providing health services not only to the neonatology but infant also. So that's also the courtesy of Honorable Qazi Sahab that he initiated that. Thank you very much, sir, for always supporting us. And the faculty of Gujranwala Medical College is always very dynamic. Our Jamsian students are really have enthusiastic approach, and they are always very innovative to have some solutions. So, sir, we are ready to have a memorandum of understanding with the Punjab Safety Road Department, and inshallah we will do the research projects. We will work with the NGOs, not only the local NGOs but also the international donor societies, so that we can make best effort to provide you the data regarding, because what in our post which we done with the neurosurgeon, the neurology department, that one of the most common cause of head injury and the hematoma surgery is the RT in Gujranwala, and the basic main factor cause is the violation of rules and regulations of the traffic which we are not following. So we will not only do the seminars, then we will also do the campaign, then we are also very much advocate for this and regarding the this day which we have organized, a Universal Health Coverage Day. Thank you so much, sir. Without any delays, let's proceed to the MAU signing ceremony. I would request Dr. Iqbal Sandover and Dr. Qazi to please proceed to the designated area. जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन जी, FPP से आपका मेज़बान बशारत हुसैन मेडिकल कॉलेज से आपसे मुखातिब। आज खुशकिस्मती की बात है कि हम एक बहुत बड़ा सेमिनार यूनिवर्सल हेल्थ के ऊपर यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी, और हमारी खुशकिस्मती आज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जो है अहमद जावेद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में स्पेशली तशरीफ़ लाए, आज के सेमिनार्स के हवाले से और मेडिकल कॉलेज के हवाले से गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप मैंने सुना जब बातें हो रही थी तो आपने पहला पौधा भी यहाँ पे लगाया, वो भी बड़ा ग्रूम कर रहा है, और आप हर जगह पे मेडिकल कॉलेज का साथ देते हैं। आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए, यूनिवर्सल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू हुई, क्या कहेंगे आज के सेमिनार के हवाले से? देखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या यूनिवर्सल हेल्थ डे ये हम सबको एक एहसास दिलाती है कि सेहत हज़ार नेमत है। आप दिन भर अपने नौकरी चाकरी या अदर रोज़गार में मसरूफ़ होते हो, लेकिन हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते सेहत के असूलों की तरफ। एक सिंपल सा चीज़ है ओबेसिटी।
हमें नहीं पता कि ये कितना हमें नुकसान देती है, लेकिन खाने पीने और पर्टिकुलरली गुजरांवाला लाहौर तो वैसे ही बड़ा मशहूर है। बट कीपिंग इन व्यू ये सारा इस तरह के जो अवेयरनेस डेज़ होते हैं, ये एक दोबारा रियलाइजेशन का मोमेंट होता है कि किस तरीके से हम बेसिक स्कूलों की तरफ तवज्जो दें, और वो हमारी लॉन्जेविटी के लिए और सेहत के लिए ज़रूरी है। आज इसका जो एक दूसरा अहम एलिमेंट था वो है रोड सेफ्टी, कि देखें बहुत सारे हम लोगों की लॉस ऑफ लाइफ या लॉस ऑफ लिम्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो पंजाब सूबा पहला है पाकिस्तान का जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रोड सेफ्टी अथॉरिटी बना दी गई है, और आज हम सबसे पहला उसका एक MOU आज हमने गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के साथ किया है। अच्छा सर, मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि ये जो रोड सेफ्टी अथॉरिटी है और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का आज होने वाला MOU जो साइन किया, मकसद क्या है इसकी? देखिए, ये इश्तराक बहुत ज़रूरी है। अगर रोड सेफ्टी है तो खाली गवर्नमेंट की 2 एजेंसियाँ, ट्रैफिक पुलिस या ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स नहीं कर सकते। ये एक अवामी शऊर का एक सवाल है। लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि वो जो गाड़ियाँ चलाते हैं क्या वो फ़िट हैं, जो लोग साइड पे चल रहे हैं क्या उनको ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी है, क्या सड़कें सही बनाई जा रही हैं, क्या जो हमारे सिग्नल्स हैं वो काम कर रहे हैं, हम क्यों इतनी ज़्यादा व्हीकल्स को बाहर निकाल रहे हैं, क्या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, इससे पहले हमारी बड़ी डिटेल मीटिंग कमिश्नर गुजरांवाला से हुई है, और गुजरांवाला में एक नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक बसेस यहाँ चलाने का प्लान है, उसकी हम बात करके आए। तो हमें एक ऐसी मुहिम चलानी पड़ेगी, अवामी आगाही मुहिम, जहाँ पे तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी को हाईलाइट करें, और अभी से नहीं, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आप स्कूलों में वहाँ से ये शऊर पैदा करें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करें, हमारी लेबर क्लास, आपको पता है इंडस्ट्रियल सिटी। सर यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछना है, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा, क्या इसकी अवेयरनेस के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम है? जी एब्सोल्युटली, बिकॉज इसमें ना ही सिर्फ एक महकमा, ये एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जिसे हम कहते हैं, उसके तहत हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट्स, मेडिकल कॉलेजेस, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हम सब मिल के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेज इनग्रेन करना है, जहन नशीन करना है, और उसमें सबसे अहम रोल मीडिया का है। अगर मीडिया बारहा इस चीज़ का इस पे ज़ोर डालेगा, इनको इम्प्रेस करेगा, आई एम प्रीटी श्योर हमारे बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सबको एहसास होगा कि रोड सेफ्टी कितनी अहम है। चलिए सर, बड़ी तवक्कुआत है आपसे कि आप इस पे बहुत काम पहले भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो इकबाल डोगर साहब के भी हम मशकूर हैं कि आज के दिन में इन्होंने बड़ी एफ़र्ट की, ऐसे सेमिनार्स करते रहते हैं, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे माशरे को संवारने में, बड़ी खिदमत करते हैं ये। जी इकबाल डोगर साहब, आज सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, कैसा लगा आपको? आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? जी हम बड़े खुश हैं, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल अहमद जवेद कादी साहब के कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी मेडिकल कॉलेज को, क्योंकि मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का पर्पज़ ही यही है कि न्यू नॉलेज क्रिएट किया जाए और रिसर्च की जाए। तो हम इंशाअल्लाह PRSA के साथ जो है ना वो खड़े हैं, और इंशाअल्लाह रिसर्च करेंगे, इस सेफ्टी को एडवोकेट भी करेंगे, और जितने प्रिवेंटिव मेजर्स, स्पेशली हमें पता है कि जो है ना वो हेड इंजरीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है ना हमारे पास आते हैं, तो अगर ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम कर लें तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे ये कहता है कि उसका एक ड्यूटी जो है इट्स गवर्नमेंट ड्यूटी, इट्स नॉट दी हाउस। और दूसरा उसका इम्पोर्टेंट आज का मैसेज है कि आउट ऑफ पॉकेट किसी को डॉक्टर्स जो है ना वो डोंट पुश द पेशेंट टू पॉवर्टी, कि आप मरीज़ की बेचारे की जो ना खाल ना उतार दें कि उसको जो ना ज़मीन बेचनी पड़े। तो इंशाल्लाह हम जितना ये WHO का विज़न है, हमारी गवर्नमेंट का विज़न है, हमारी ऑनरेबल CM मरीम नवाज़ साहिबा का विज़न है, और हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर और सेक्रेटरीज़, हम इसके साथ हैं मुआशरे को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए, और अपने बच्चों को फ्यूचर के 7 स्टार डॉक्टर्स बनाने के लिए। शुक्रिया। यकीनन जी डॉक्टर साहब, हर बंदा अगर इस पूरे माशरे को संवारने में अपने हिस्से का काम करता जाए, माशरा खूबसूरत भी होगा, इससे खुशबुएँ भी आएंगी, और आप जैसे लोग जो हैं, आप जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी बड़ी तवक्कुआत है आपसे। बहुत शुक्रिया।